So now we continue our topic molecular basis of inheritance. So far in the chapter we studied about the structure of DNA. Then after that search for the genetic material. There are 3 experiments performed by different scientists, and then in the last lecture we have seen the process of DNA replication and the proof for semi-conservative DNA replication. We have studied 2 experiments. One experiment was performed by Michelson and Stahl, and the other experiment was performed by Taylor and his co-workers on faba beans. So up to that we have studied. Now our immediate last topic was the DNA replication, and we have seen during the DNA replication that one existing DNA molecule, it duplicates to form its daughter copy. So the copy which is formed, it is exactly the replica copy of the pre-existing DNA molecule. So we also call that process as the DNA duplication. One more term is assigned sometime for DNA duplication or replication. It is the autocatalytic feature of the DNA. Autocatalytic feature of the DNA. What is mean by autocatalytic feature? Autocatalytic feature means where a DNA molecule or existing DNA molecule will duplicate to form or to produce its own replica copy. But now we are studying another very important feature of the DNA. It is the process of transcription. The process of transcription, it is defined as the formation of RNA from the DNA molecule. Formation of RNA from DNA molecule. It is also referred as heterocatalysis for DNA. So we can also write it as the heterocatalysis of DNA molecule, where a DNA molecule, double stranded DNA molecule, the part of that double helical structure will open itself, then a particular part will copy itself in the form of RNA. तो DNA जो है डबल हेलिक्स, उसका कोई पार्ट ओपन होता है और ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है फिर, और वहां से फिर उसकी कोई एक स्ट्रैंड जो होती है, हम लोग देखेंगे कौन सी स्ट्रैंड कॉपी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी करके आरएनए का मॉलिक्यूल या आरएनए का स्ट्रैंड बनाती है. All the types of RNA, we have seen 3 different types of RNA: messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. All the types of RNAs are formed from the DNA molecule. But for the purpose of protein synthesis or polypeptide synthesis, the message is carried on the messenger RNA. So we are more concerned with the formation of mRNA, मैसेंजर आरएनए. तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि मैसेंजर आरएनए जो है वो कैसे बनता है. वैसे जितने भी टाइप के आरएनए हैं, राइबोसोमल, ट्रांसफर आरएनए जो भी हैं, सभी जो है वो डीएनए से ही बनते हैं, और सभी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ही बोलते हैं. बट हमको जो पॉलीपेप्टाइड के लिए आरएनए रिक्वायर होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए. सो ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है. डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है, पहले एक प्रिकर्सर एमआरएनए बनता है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होकर के फिर मैच्योर या फंक्शनल मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है. सो ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहले तो डेफिनेशन याद रखो कि क्या है ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन. अब उसके बाद में हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं. तो यहाँ we start with the double helical DNA molecule. Now let us assume that
I am drawing horizontally the double helical structure. Suppose this is our DNA molecule and we can write the polarity. हम लोग suppose कर लो this is 5 prime 3 prime and this is of opposite polarity 5 prime to 3 prime. तो जैसे जैसे अपना जो प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर डीएनए ओपन होना स्टार्ट होता था एक तरफ से और फिर उसके बाद में धीरे धीरे डीएनए ओपन होता जाता था और न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता रहता था. तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर पूरा डीएनए एक साथ में ओपन नहीं होता है. यहाँ पे डीएनए का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वही ओपन होता है. सो अ पर्टिकुलर पार्ट गेट ओपन. अब जहां से डीएनए जो है वो ओपन होगा उस पॉइंट को यहाँ पर ओरिजिन कहते हैं, पर ये वो उस तरह का ओरिजिन नहीं होता जैसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में होता है. तो यहाँ पर जो है डीएनए का कोई पर्टिकुलर पार्ट ओपन हो रहा है. सपोज कर लो हम लोग इसको यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि सपोज इस पॉइंट से लेकर के ये इस पॉइंट तक का डीएनए जो है वो ओपन हुआ है. तो ये इतना पार्ट जो रहेगा इट विल कंटेन द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब जो जीन है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाने का जो सीक्वेंस है वो इतनी ही दूर में कहीं पर होगा. तो इसको ओपन करने का जो काम है वो किया जाता है कुछ स्पेशलाइज्ड फैक्टर्स से जिनको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स. और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कहते हैं हम लोग सिग्मा फैक्टर और सिग्मा प्रोटीन. तो वो इसको ओपन भी करता है और उसके बाद में फिर डीएनए पॉलीमरेज के यूनिट के साथ में जुड़ करके आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ करके फिर उसकी कैटालिसिस भी करता है, मतलब मैसेंजर आरएनए बनाना स्टार्ट करता है. तो जब ये ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद में अगर हम लोग जो है इसको ओपन कर देते हैं पार्शियली ओपन डीएनए. सपोज कर लो कि ये अपना ओपन डीएनए है. Now this is the open part of the DNA. This is again 5 prime and 3 prime and this five dash to 3 dash. Now this particular portion, ये इतना जो पार्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ओपन हुआ वाला पार्ट है, this is called as the transcription bubble because it appears like a bubble if we observe it under electron microscope. So this is the transcription bubble. Now there are two strands. दो strand यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. तो इसमें से वो strand अगर हम लोग इसको अपने कन्वीनियंस के लिए लेफ्ट टू राइट अभी रीड कर रहे हैं तो वो स्ट्रैंड जो ओरिएंटेड है 3 प्राइम से, ये जो येलो कलर से ड्रॉ की हुई है, दिस इज फ्रॉम 3 प्राइम टू द 5 प्राइम, ये वाली जो चेन है स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. This is called as the template strand. And the opposite strand, this strand which is oriented from 5 prime to 3 prime, this is called the non-template. Now, out of template and non-template strand, only template strand is used for synthesis of RNA. DNA में हमने देखा था कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनके ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल बनता था. यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल जो है या आरएनए का जो स्ट्रैंड है मैसेंजर आरएनए का वो सिंथेसाइज होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो कि ओरिएंटेड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी थी वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही कैटालिसिस करता था, ऐसे ही यहाँ जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसकी भी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो 5 डैश या 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है. मतलब कि 3 प्राइम जो OH ग्रुप होता है उसी को ये भी एक्सटेंड करता है. तो यहाँ पर जो है ये वाले स्ट्रैंड जो है ये 3 प्राइम से है
तो जब इसके ऊपर सिंथेसिस इस तरफ से स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली इस तरफ जो है, सपोज यहाँ पर अगर इसको हम कट करते हैं तो यहाँ पर 3 प्राइम आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 5 प्राइम आएगा न्यू सिंथेसिस होने वाले आरएनए का, और जब वो आगे बढ़ेगा तो वो 3 प्राइम की तरफ बढ़ेगा। इसको अभी हम लोग जो है वो डायग्राम से भी देखेंगे, हम उस डायग्राम से इसको समझेंगे जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में या जनरली जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है उसके थ्रू। पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा और उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम पर आएंगे। जो न्यू सिंथेसिस होती है वो ये वाली चेन पर होगी, टेम्पलेट पर। नाउ रिमेंबर द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहाँ पे यही कॉपी होती है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है कॉपी नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों में से एक ही चेन जो है यहाँ पर कॉपी हो रही है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाली, it is also called as coding strand. Template strand is also called as non-coding strand. मैं यहां पर लिख देता हूं, it is non-coding strand, और it is also called as non-coding भी इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं anti-sense strand। और इसके अपोजिट में ये वाली जो स्ट्रैंड है इट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। अब ये नाम जो है ये अपोजिट मालूम दे रहे होंगे सुनने में, यहां पर एग्जैक्टली जो सेंस है, जो कोड है प्रोटीन बनाने का, जो मैसेज है वो ये वाली चेन के पास में है। लेकिन अगर इस चेन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्रीली कॉपी करते हैं आरएनए के फॉर्म में तो जो मैसेज है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए एग्जैक्ट मैसेज तो इसके पास में है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपिंग होती है वो दूसरे वाली स्ट्रैंड यानी जो टेम्पलेट है या नॉन कोडिंग है उसकी कॉपी होती है। तो हमको जो आरएनए का मॉलिक्यूल मिलता है उस आरएनए के मॉलिक्यूल में और आरएनए के स्ट्रैंड में हमको सारे के सारे नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो इस चेन के जैसे होते हैं, एक्सेप्ट द थाइमीन इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। बस सिर्फ थाइमीन और यूरेसिल का ही फर्क होता है। मतलब यहाँ पर जैसे सपोज कर लो एडेनाइन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, फिर एडेनाइन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह से होगा, थाइमीन है, साइटोसिन, देन एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन एंड एडेनाइन। तो जब इसको कॉपी किया जाएगा, इसको जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी करेंगे तो हमको जो स्ट्रैंड मिलेगी वो इसके जैसे मिलेगी। आप करके भी देख सकते हैं, जैसे सपोज कर लो टी है तो टी के सामने जो है वो ए आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, ए के सामने जो है एडेनाइन है, तो अब एडेनाइन के सामने जो है वो थाइमीन अगर डीएनए होता तो आता, लेकिन यहाँ पे ये डीएनए नहीं है तो यहाँ पर ए के सामने यूरेसिल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने समझने के लिए ए जी, ए के सामने यू है, यहाँ पर टी के सामने ए, सी के सामने जी, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री फिर यूरेसिल, फिर थाइमीन है तो थाइमीन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनाइन, देन ग्वानिन, फिर उसके बाद में यहाँ पर यूरेसिल। तो ये वाली जो स्ट्रैंड बन रही है, दिस स्ट्रैंड, इसको हम लोग अगर इससे कंपेयर करते हैं इस स्ट्रैंड से, तो इस स्ट्रैंड से कंपेयर करने में हमको दिख रहा है कि यहाँ सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पर थाइमीन जहाँ जहाँ पर भी आया है उसके सामने यहाँ पे यूरेसिल है। तो यही फर्क होता है। तो इसका मतलब ये कि जो ये मैसेज है वही मैसेज यहाँ पर पहुंचेगा ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, बाद में फिर वो ट्रांसलेट होकर के उससे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होंगे। तो ये जो इतना स्ट्रक्चर है, जितना पार्ट ओपन हुआ, मैं इसको भी रफ कर देता हूं। ये जो पार्ट ओपन हुआ वाला हम लोग देख रहे हैं, दिस पार्ट इट इज कॉल्ड द कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल, और इसके 3 पार्ट्स हैं, देयर आर 3 सब पार्ट। स्टार्ट में यहाँ पर जो है कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स को बाइंड करवाने में। तो यहाँ पर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड होते हैं। तो ये इतना पार्ट, दोनों स्ट्रैंड का जो पार्ट है, सपोज यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये इतना पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड एज प्रोमोटर, दिस इज कॉल्ड प्रोमोटर। और फिर ये मिडल पार्ट है जहां पर एक्चुअल प्रोटीन
या पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करने का जो मैसेज होता है, दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल जीन। और फिर बाद में यहां पर ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो ये तीनों प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर सीक्वेंस, इनको मिला करके बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स जो है, पर्टिकुलरली जो प्रोमोटर है उसका डायरेक्शन, और फिर उसके बाद में जब इलोंगेशन होगा स्ट्रक्चरल जीन की, जब कॉपिंग होगी, तो उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग जो है ये कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो ज्यादा करके और नॉर्मली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो कन्वेंशन है वो डायरेक्शन बताने के लिए जो है यूज होता है। यहाँ पर कॉपी तो होता है टेम्पलेट वाला, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए जो है ये वाली स्ट्रैंड यूज होती है, मतलब जो नॉन टेम्पलेट होती है। तो इसको हम जो है वो प्रोजेक्टर पर एक वो डायग्राम जो अपने बुक में दिया हुआ है उस डायग्राम के थ्रू इसको अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। Okay, so see, this is the schematic representation और schematic structure of a transcription unit, जो अभी हम लोगों ने वहां पर देखा। प्रोमोटर, फिर ये मिडल में जो है स्ट्रक्चरल, और यहाँ पर जो है टर्मिनेटर। तो यहाँ पे प्रोमोटर को इस तरह से रेड कलर की आउटलाइन से और टर्मिनेटर को यहाँ पर ब्लू कलर की आउटलाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड्स दिखाए हुए हैं डीएनए के, जो ओपन होने के बाद में है। तो ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाली या ग्रीनिश ब्लू जो लाइन है, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर हम लोग इस तरफ से लेफ्ट टू राइट इसको अभी रीड कर रहे हैं, तो ये 3 प्राइम से इधर 5 प्राइम है इसका, और ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल अपोजिट स्ट्रैंड है। तो ये वाली है कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर ये ओरिएंटेड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड, जैसा अभी हम लोगों ने बोर्ड पर भी लिखा है वहां पर। देन कोडिंग स्ट्रैंड जो होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन टेम्पलेट, क्योंकि ये आरएनए बनाने में यूज नहीं होती। और इसी को जो है नॉन टेम्पलेट के साथ साथ कोडिंग को सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सेंस स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल जो सेंस होता है, सेंस का मतलब यहाँ पे मैसेज प्रोटीन का, वो यही वाली स्ट्रैंड के पास है। लेकिन अगर इसको जो है अगर कॉपी कर लिया जाएगा, तो फिर इसको कॉपी करने की वजह से जो मैसेज है वो रिवर्स हो जाएगा। पर हमको इसी के जैसा मैसेज चाहिए, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली स्ट्रैंड है, ऊपर की जो स्ट्रैंड है जो नॉन कोडिंग वाली, उसको जब हम कॉपी करेंगे तो इसके जैसी बनेगी, सिर्फ वहां पर जो है वो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2018 नीट के अंदर जो है क्वेश्चन आया था, एक स्ट्रैंड दी हुई थी, कुछ नाइट्रोजन बेसेस दिए हुए थे, और फिर पूछा था कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर कौन सी सीक्वेंस आएगी, और नीचे ऑप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार आए हैं। कभी जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे करके आरएनए को पूछता है, कभी टेम्पलेट का दे करके आरएनए पूछता है, कभी आरएनए दे करके कोडिंग पूछता है, कभी आरएनए दे करके जो है वो टेम्पलेट पूछता है, कभी नाम चेंज कर देता है, टेम्पलेट की जगह नॉन कोडिंग डाल देता है, या नॉन कोडिंग की जगह पर जो है एंटी सेंस बोल देता है, कभी कोडिंग की जगह सेंस बोल देता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखेंगे वहां पर भी। और प्रीवियस एग्जाम्स में भी ऐसा देखा गया है कि हर साल 1 या 2 साल बीच में मिस हुए होंगे, नहीं तो इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आए ही हैं इस टॉपिक के ऊपर। और इसी के बेस पर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर भी जो है क्वेश्चन इन टेक्स्ट डाला हुआ है। तो आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए 108 के ऊपर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन डाला हुआ है। तो वहां पर टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट मतलब कि कोडिंग स्ट्रैंड दोनों का सीक्वेंस लिखा हुआ है, और नीचे जो है वहां पे क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए। अब वो डीएनए, ऊपर के डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के बाद में उसका जो सीक्वेंस बनेगा, क्या आप वो बता सकते हैं, ये पूछा गया है। तो अभी इसके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स मैं आपको बता देता हूं।
तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। जो प्रोमोटर है इट इज ओरिएंटेड, तो प्रोमोटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो बॉक्स जैसा पार्ट है ये प्रोमोटर है। तो प्रोमोटर का जो डायरेक्शन है ये प्रोमोटर का डायरेक्शन, अगर हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड के सेंस में इसकी बात करते हैं तो ये लोकेटेड है टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। कर्सर के ऊपर आप ध्यान देंगे तो प्रोमोटर जो है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। नॉर्मली जितने भी रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड के ऊपर, ये सभी रेफरेंस पॉइंट को जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीनों रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बाय कन्वेंशन कोडिंग स्ट्रैंड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमको ये बोलना है कि वेयर इज द प्रोमोटर लोकेटेड, प्रोमोटर कहां पर लोकेटेड है, तो हम ये नहीं बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और 5 प्राइम एंड ऑफ राइट हैंड साइड। इस तरह से ऐसे लेफ्ट और राइट हैंड साइड नहीं बोला जाता है। जितने भी यहाँ पर डायरेक्शंस हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, इनके डायरेक्शन बताने के लिए we use the reference strand as the coding one। तो कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग जो है रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं। सो इफ वी वांट टू से वेयर द प्रोमोटर इज लोकेटेड, सो वी हैव टू सिंपली से दैट इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड इट इज अंडरस्टूड ऑलवेज दैट इट इज लोकेटेड 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। सो और इफ वी वांट टू से with respect to the template, then we have to add specifically the word template। So where the promoter is located, if we want to say it, we can see it like that, promoter is located towards 3 prime end of template strand। और या कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं promoter is located towards 5 prime strand, 5 prime end। तो जब हम 5 प्राइम एंड बोलेंगे तो हमको वहां पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं इसके डायरेक्शन को लेकर के, क्योंकि पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पर है ये प्रोमोटर। अब जो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर वो कौन सी साइट होती है? प्रोमोटर वो साइट होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो प्रोमोटर के ऊपर ही जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ इंपॉर्टेंट एंजाइम वही है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम यहाँ पर आकर के अटैच होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए आपको उसके टाइप्स याद रखना है। प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो है, यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 अलग-अलग टाइप के होते हैं। उनको उनके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पर नंबर दिया गया है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो इसके अंदर जो अपना जो मैसेंजर आरएनए है या जो हम सिंथेसाइज यहाँ पर करना चाहते हैं वो मेन आरएनए पॉलीमरेज 2 से होता है। और आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को, आरआरएनए को। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है। और राइबोसोमल आरएनए आपको पता है कि राइबोसोम के साथ में एसोसिएटेड होता है। और राइबोसोम के 2 मेन पार्ट है, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, उसका एक प्रोटीन है, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। तो जो आरएनए आरआरएनए जो ट्रांसक्राइब होता है पॉलीमरेज 1 से, आरएनए पॉलीमरेज 1 से, इट कंटेन्स 28S आरएनए, 28S सब यूनिट वाला राइबोसोम, और 18S स्वेडबर्ग यूनिट राइबोसोम एंड 5.8S राइबोसोम। तो ये तीनों जो है वो मिला करके बनाते हैं अपना ये तीनों बनते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू। फिर दूसरा जो है आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो रिस्पांसिबल होता है वो एक्चुअली अपना मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब हम चाहें तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, या कि फिर आपको पता होगा कि डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है, पहले एक प्रीकर्सर आरएनए बनता है जिसको हम लोग HNmRNA भी कहते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर mRNA। तो उसको बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 रिस्पांसिबल होता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये बनाता है ट्रांसफर आरएनए और 5S rRNA और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होता है ये रेगुलेट करता है आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट को। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 हमारा यहाँ पर मेन
एंजाइम है जो कि पूरा ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। अभी आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोकैरियोट में तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, पर यूकैरियोट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि यूकैरियोट के अंदर जो अरेंजमेंट होता है बाद में वो स्प्लिट जीन वाला अरेंजमेंट होता है, मतलब उसके अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं, तो उसके लिए जो एंजाइमेटिक मशीनरी है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो आरएनए पॉलीमरेज 2 यूकैरियोट्स के अंदर उसमें 5 सब यूनिट्स होते हैं। अभी जो सब यूनिट है ये पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट्स हैं। 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं और जो कि इनिशिएशन पॉइंट को या इधर प्रोमोटर को बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। एक बीटा सब यूनिट होता है, एक बीटा डैश सब यूनिट होता है। तो बीटा सब यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करता है, बीटा डैश सब यूनिट जो होता है वो डीएनए टेम्पलेट को बाइंड करता है, और एक ओमेगा सब यूनिट होता है। तो ओमेगा सब यूनिट जो होता है इसका प्रोबेबल फंक्शन ही मालूम है, एग्जैक्ट फंक्शन मालूम नहीं है, और ये जो है बीटा सब यूनिट को रेगुलेट करता है। और साथ में इन सब यूनिट्स के साथ में एक जो है वो सिग्मा फैक्टर भी है यहाँ पर। तो जो सिग्मा फैक्टर होता है, दैट सिग्मा फैक्टर वो स्टार्ट करवाता है ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर यहाँ अभी हम लोग जो है उसका प्रोसेस देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है कैसे होता है। तो उसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। Okay, see, this is the diagram showing the process of transcription. मैं इसको थोड़ा zoom करता हूँ। Okay, now here you can see the process of transcription in eukaryote, and this is the same diagram which is given in your NCERT textbook page number 109. So we are studying with the help of similar diagram. दूसरे भी डायग्राम है मेरे पास में, बट हम लोग उस डायग्राम से इसको स्टडी कर रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, so that you can easily understand when you read your own textbook. So this is the double helical molecule of the DNA. Now this point, ये ओपन हुआ वाला पॉइंट है जो अभी हम लोगों ने बोर्ड पर ड्रॉ किया था, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, और ये जो मिडल में देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का यहाँ पर एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इसके अंदर छोटे छोटे जो स्फीयर या सर्कल जैसे जो हम देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सब यूनिट्स को। तो 5 सब यूनिट्स मैंने आपको बताए, 2 अल्फा, एक बीटा डैश और एक ओमेगा सब यूनिट। तो ये इनके अलग अलग फंक्शन जो मैंने बताए हैं, एनसीईआरटी में जो है इनके सब यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं, इनके फंक्शन भी नहीं दिए हुए, ये एडिशनली मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको एडिशनली याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है, अब इसका जो ओरिएंटेशन है ये कॉपी करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है अपनी, जो कि ओरिएंटेड है, आप देख सकते हैं वहां पर इसके पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था टेम्पलेट कहां पर है। तो जब इसकी कॉपिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्रोमोटर को आके बाइंड होता है, और प्रोमोटर पे बाइंड होने के बाद में, प्रोमोटर वो साइट होती है जहां पर ये आके बाइंड होता है। अब प्रोमोटर में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सीक्वेंस होती है प्रोमोटर की। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन सीक्वेंस होती है प्रोमोटर की, इट इज कॉल्ड TATAAT सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स सीक्वेंस। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, टाटा बॉक्स आप चाहे तो एडिशनली याद रख सकते हैं। सो टाटा बॉक्स सीक्वेंस कुछ समवेयर यहाँ पर होती है, जो अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, कॉपी होने वाला जो स्ट्रैंड होता है वहां पर, मतलब टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, या इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। 3 प्राइम को डाउन स्ट्रीम और 5 प्राइम को जो है अप स्ट्रीम बोला जाता है। तो सिंथेसिस होती है, ये पूरा इसके ऊपर रन होता है, ये वाली स्ट्रैंड को कॉपी करता है, जो रेड वाली देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है, और ये एक स्ट्रैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहर निकल रही है। तो जो इसकी बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग जो है इट इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर हेल्प करते हैं सिग्मा फैक्टर। और जैसे ही ये आगे बढ़ता है प्रोसेस, मतलब ये जो स्ट्रक्चरल जीन पर आता है, तो यहां आने के बाद में एक और फैक्टर आकर के, प्रोटीन फैक्टर आकर के इसको ज्वाइन करता है, इट इज कॉल्ड एज रो फैक्टर। नाउ रो फैक्टर के साथ में कुछ और फैक्टर्स होते हैं व्हिच आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन फैक्टर्स।
तो ये रो फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन फैक्टर और प्रीवियसली आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जो उसके सब यूनिट्स हैं, पर्टिकुलरली बीटा सब यूनिट, क्योंकि बीटा सब यूनिट जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट होता है और वही न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करके यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसफर करता है। तो ये इस तरह से कॉपी होता जाता है। अब ये कॉपी होते होते फिर फाइनली ये वाली स्ट्रैंड पर पहुंचता है इस तरफ, जहां पर जिसको हमने बोला था टर्मिनेशन सीक्वेंस। तो जब ये टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास में पहुंचता है तो जो रो फैक्टर होता है, रो फैक्टर, वो रो फैक्टर क्या करता है, इस आरएनए पॉलीमरेज को यहां से डिटैच कर देता है, मतलब यहां से अलग कर देता है और उतनी देर में फिर ये जो अपना स्ट्रैंड हम देख रहे हैं आरएनए का, ये बन जाता है। तो ये जो न्यू स्ट्रैंड जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, इस पर देखिए ये वाला स्ट्रैंड जो है, ये वाला स्ट्रैंड जो बनता है इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर एमआरएनए, या शॉर्ट में इसको कहा जाता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए भी बोल सकते हैं या एचएनएमआरएनए भी कह सकते हैं इसको। तो ये एचएनआरएनए बन गया। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हेट्रोजीनस आरएनए नहीं बनता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं प्रोकैरियोट्स में। बट यूकैरियोट्स में पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है और फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है आरएनए के ऊपर और फिर उसके बाद में जो है ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ हम लोग विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट पढ़ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यूकैरियोट के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोट में पहले जो है ये बनता है एचएनएमआरएनए और उसके बाद में फिर प्रोसेसिंग दिखाई हुई है नीचे के 3 डायग्राम्स में। सो इन प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, वहां पर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर पहले एक प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आरएनए यहां बन रहा है दिस इज कॉल्ड प्रीकर्सर एमआरएनए, इसको प्रीकर्सर एमआरएनए भी बोल सकते हैं या कि फिर जो है एचएनएमआरएनए। अब इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, तो यहां पर जो प्रोसेसिंग दिखाई हुई है, यहीं पर एक पहली प्रोसेसिंग दिखा दी गई है यहां पर। तो यहां पर दिखाया गया है फर्स्ट प्रोसेसिंग जो है कैपिंग प्रोसेस है। तो कैपिंग प्रोसेस जो होता है वो होता है टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। नाउ टुवर्ड्स कैपिंग क्या होता है वो देखेंगे। टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड एक मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, एक छोटा सा M लिखा हुआ है और G और 3 बार फॉस्फेट, दिस इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक रेसिड्यू होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, वो आकर के 5 प्राइम एंड के ऊपर अटैच हो जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू दिस न्यू और न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल। तो जब ये यहां पर अटैच होता है तो यहां पर एक छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, तो इसलिए समझो इसको हम लोग जो है वो कैपिंग प्रोसेस कहते हैं। सो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये यहां पर ट्रांसफर हुआ और नेक्स्ट फिर सेकेंड जो है इसको कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग, यहां लिखा हुआ है मिडिल में आरएनए स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग जो होता है ये 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड के बीच में होता है। यहाँ पर हम लोग बीच में देख रहे हैं कुछ पार्ट जो है वो येलो कलर से दिखाया हुआ है और कुछ पार्ट जो है यहाँ पे लाइट रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो ये जो बीच में इंटरवीनिंग रेड कलर वाला पार्ट है ये इंट्रॉन पार्ट है और जो येलो कलर वाला पार्ट है ये एक्सॉन पार्ट है। तो एक्सॉन वो सीक्वेंसेस होते हैं जो प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर अपीयर होने वाले हैं और इंट्रॉन ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इनके पास में प्रोटीन सिंथेसिस का कोई मैसेज नहीं होता। तो इनको जो है वो कट करके पहले निकाल दिया जाता है और बाद में फिर इनको डीजनरेट कर दिया जाता है। तो स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस होता है इट इज परफॉर्म्ड बाय स्प्लाइसोसोम और स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम नाम के एंजाइम है जो इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ से ये इस पॉइंट से और हर एक इंट्रॉन के पॉइंट से इनको कट कर देते हैं और कट करके निकाल देते हैं, बाद में डीजनरेट कर देते हैं। और फिर ये जो येलो कलर वाला पार्ट है मतलब जिसको एक्सॉन बोला गया है, ये एक्सॉन आपस में क्या हो जाते हैं
रीजॉइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस देखो दिखाया गया है, ये जो सर्कल सर्कल दिखाया जा रहा है, ये सर्कल एक्चुअली जो है ये स्प्लाइसियोसोम है। तो ये सर्कल आप देखेंगे तो वहीं पर अटैच्ड है जहां पर रेड कलर के इंट्रॉन्स है। तो ये हर एक इंट्रॉन को यहाँ पर देखो कट करके निकाल दिया गया है। अब कट करके निकालने के बाद में जो येलो वाला पार्ट जो एक्सॉन है उनको बाद में यहाँ पर रीजॉइन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है पॉलीएडिनाइलेशन, या इसी को कहा जाता है टेलिंग प्रोसेस। तो कैपिंग हुआ, स्प्लाइसिंग हुआ और उसके बाद में भी यहाँ पर टेलिंग प्रोसेस है। ये सभी जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको जो है जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में पढ़ें। तो ये सब ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ही होते हैं। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि कट करके इंट्रॉन निकल गए, एक्सॉन जो है वो रिजॉइन हो गए। और फिर पॉलीएडिनाइलेशन यानी जिसको हम टेलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो टेलिंग प्रोसेस में ये होता है कि 3 प्राइम एंड की तरफ यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आप एक फ्रेगमेंट देख रहे हैं जो कि अटैच हुआ है यहाँ पे आके। तो ये जो ग्रीन कलर का फ्रेगमेंट यहाँ पर अटैच होकर दिखाया है, दिस इज कॉल्ड पॉली ए टेल। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द पॉली ए टेल। नाउ दिस पॉली ए टेल यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे एडेनाइन के रेजिड्यूज होते हैं। एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे रेजिड्यूज होते हैं, नियर अबाउट 50 to 100 तक जो है वो रेजिड्यूज होते हैं। एंड दीज रेजिड्यूज दे आर ट्रांसफर्ड, सिंथेसाइज होते हैं और फिर आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। इनको ट्रांसफर करता है एंजाइम पॉलीएडिनाइलेट सिंथेटेज। तो एंजाइम का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहे तो याद रखें, नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। सो इट इज सिंथेसाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड बाय पॉलीएडिनाइलेट सिंथेटेज। तो ये पॉलीएडिनाइलेट सिंथेटेज को यहाँ पर ट्रांसफर करता है और ये जो चेन है जो टेल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड पॉली ए टेल, पॉलीएडिनाइन टेल। अब ये पॉलीएडिनाइन टेल यहाँ पे जुड़ गई, बीच में से इंट्रॉन कट करके निकल गए और जो एक्सॉन्स थे आपस में रिजॉइन हो गए। 5 प्राइम एंड की तरफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर आ गया, कैपिंग हो गई। हाँ, ये जो कैपिंग है इसको परफॉर्म करवाता है एंजाइम मिथाइल गुआनोसिन ट्रांसफेरेज। तो तीनों के लिए एंजाइम याद रखे तो अच्छी बात है। कैपिंग के लिए मिथाइल गुआनोसिन ट्रांसफेरेज, स्प्लाइसिंग के लिए स्प्लाइसियोसोम और टेलिंग के लिए पॉलीएडिनाइलेट सिंथेटेज। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर जो आरएनए यहाँ नीचे जो दिखाया गया, दिस आरएनए, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस्ड आरएनए। Processed RNA. Now this processed RNA, it contains only exon. यहाँ पर exon है, 5 प्राइम पर कैप है, 3 प्राइम पर पॉलीएडिनाइन की पॉली ए टेल है। तो ये जो RNA हमारा बना, this RNA is called messenger RNA और mRNA। इसको हम mRNA कहते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद तक है। तो ट्रांसक्रिप्शन देखा हमने पहले, उसके बाद में फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस देखे। ये जो सभी प्रोसेसेस हैं यूकेरियोट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सभी प्रोसेसेस जो होते हैं, these all are taking place inside the nucleus, क्योंकि डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये सभी प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। तो ये प्रोसेस्ड आरएनए यहाँ पर आ गया। अब एक चीज आपको और याद रखना है, यूकेरियोट्स के अंदर जो आरएनए होता है, इट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए। मोनो मींस होता है वन, सिस्ट्रॉन वो पार्ट होता है डीएनए का या जीन का, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में या मॉडर्न कंसेप्ट जो सीमर बेंजर ने इंट्रोड्यूस किया था उसके मुताबिक अगर हम देखें तो सिस्ट्रॉन वो पार्ट होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करने के लिए मैसेज रखता है। तो यहाँ पर ये अगर ये तो हमने यूकेरियोट का ही देखा है, तो यूकेरियोट के अंदर ये जो पूरा आरएनए है, इट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए। मोनोसिस्ट्रॉनिक मींस इट हैज द मैसेज फॉर सिंथेसाइजिंग वन पॉलीपेप्टाइड चेन। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए बनता है, दैट आरएनए इट इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए। तो प्रोकैरियोट के लिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए है, मतलब एक सिंगल आरएनए में अलग अलग जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की मैसेज होंगे वहां पर। अगर आपको याद होगा तो आपने कभी लैक ओपेरॉन का टॉपिक स्टडी किया होगा,
तो ले कोपेरॉन के टॉपिक में आपने देखा होगा कि वहां पर एक सिंगल आरएनए बनता है जो कि 3 अलग अलग एंजाइम या प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है बाद में। तो ये वाला जो है ये यूकैरियोट है, तो यहाँ पर ये मोनोसिस्टोनिक आरएनए, दिस इज द प्रोसेस्ड आरएनए। तो यहाँ पर अपना जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का जो है वो टेबल दिया हुआ है, मैं टेबल जो है प्रोजेक्ट करता हूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक कोड। हमने आरएनए के टॉपिक में जेनेटिक कोड को स्टडी किया है। वो पूरा सीक्वेंस जो आरएनए के ऊपर आता है न्यूक्लियोटाइड का, उसको कहा जाता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड भी कहते हैं या उसी को जो है मैसेंजर आरएनए लैंग्वेज भी कहा जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिप्टोग्राम। तो एक ये कोडेड मैसेज होता है जो कि डीएनए से प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसा अभी हमने देखा। तो जेनेटिक कोड के जो इंपॉर्टेंट फीचर है, वो मैंने जो इंपॉर्टेंट फीचर था बताया भी था, आरएनए के टॉपिक में हमने स्टडी किया है उसको। जेनेटिक कोड को सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज गैमो ने, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उसके अंदर उसके डिस्कवरी में इन्वॉल्व हैं, जैसे मार्शल नायरनबर्ग हैं, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना है, ओकोवा है इनके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कॉर्नबर्ग है, ये लोगों ने जो है इसको डिसिफर किया, बनाया और इसको इंट्रोड्यूस किया। तो जेनेटिक कोड इट इज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होता है बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। और जेनेटिक कोड जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप होता है, जैसे यहां पर देख सकते हैं हम लोग, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, ट्रिपल यू, डबल यू सी, फिर डबल यू ए, डबल यू जी, इस तरह से ये पूरा टेबल है। तो ये जो 3 का जो ग्रुप है इट इज कॉल्ड एज द ट्रिपलेट कोडॉन, इसको कोडॉन कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन का जो कलेक्शन होता है वो होता है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है उसका ट्रिपलेट होना, ट्रिपलेट नेचर। तो ट्रिपलेट नेचर है। अब टोटल यहाँ इस टेबल के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इन ऑल टोटल 64 ट्रिपलेट्स हैं। अगर हम काउंट करेंगे तो 64 ट्रिपलेट है, मतलब एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 है, और यहाँ पर अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 64 बनते हैं। और इसमें जो फर्स्ट कोडॉन है जो कि मैसेंजर आरएनए पर यूजुअली अपीयर होता है, इट कोड्स फॉर मीथियोनिन। मैंने ये बताया था, आपको याद होगा, AUG होता है वो, AUG मीथियोनिन के लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है AUG, बोल्ड किया हुआ है, मेट लिखा है। मेट का मतलब है मीथियोनिन एंड इट इज यूजुअली द स्टार्ट कोडॉन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, स्टार्ट कोडॉन ये होता है। कुछ रेयर केसेस में जो है GUG स्टार्ट कोडॉन फंक्शन करता है, बट रेयर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जेनेटिक कोड की पहला जो फीचर है वो है ट्रिपलेट नेचर, मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक ट्रिपलेट बनाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेसिफिसिटी। वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड। मतलब अगर इनमें से ये इतने सारे जो हैं, अब ये टोटल 64 है, तो ये टोटल 64 में से 61 कोडॉन ऐसे हैं जो कोई ना कोई अमाइनो एसिड को जरूर कोड करते हैं। 3 ऐसे हैं जिनको स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर जहां पर ये 3 स्टॉप कोडॉन आ गए हैं, लिखा हुआ भी है इसमें, और ये तीनों स्टॉप कोडॉन जो है वो मैंने आरएनए के टॉपिक में पढ़ाया था, तो ये रिपीट हो रहा है अपना टॉपिक। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इसको टेबल के थ्रू देख ले रहे हैं। इसके पहले हमने इसको मैसेंजर आरएनए के टॉपिक में देखा था। तो यहाँ पर जो 3 स्टॉप कोडॉन है, मैंने बताया था आपको, UAA, UAG और UGA। तो 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, और ये जो स्टॉप कोडॉन है ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं।
सो दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, दे आर टर्मिनेशन कोडॉन। दो यहाँ पर दिए हुए हैं और एक यहाँ पर है। सो ये 3 स्टॉप कोडॉन है। बाकी के जो हैं वो कोई ना कोई अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, दे आर कॉल्ड सेंस कोडॉन। तो अब यहाँ एक तो फीचर ये है कि वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड, मतलब ये 61 में से अगर हम कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो उसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड हमको जरूर देखने को मिलेगा। सपोज कर लो रैंडमली हम लोग सिलेक्ट करते हैं CCA को, तो यहाँ हमको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है CCA। CCA यहाँ पर है, देखो। तो ये कोड कर रहा है प्रो को, तो प्रो का मतलब यहाँ पे है प्रोलीन, तो ये प्रोलीन को कोड कर रहा है। ऐसे यहाँ पर ट्रिपल यू सी फेनाइल एलानाइन को कोड कर रहा है। ये दोनों ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये चारों ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये आइसोल्यूसीन को, ये वैलिन को, ये एलानाइन को, थ्रियोनिन को, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, अर्जिनाइन, सेरीन, तो सिस्टीन, इस तरह से ये अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पर जो है वो 3-3 लेटर का नाम दिया हुआ है। आपको कोई फुल लेटर जो है, इतना फुल अमाइनो एसिड के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ याद रख लो तो अच्छा रहेगा। पूरा टेबल याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई याद नहीं करता है पहले तो फिर भी अगर कुछ याद कर लिए तो अच्छा होगा। कभी कभी जो है वो एग्जाम में कभी कुछ भोले भटके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ तो याद कर लो कम से कम, जैसे कि शुरू के 2-3 हैं याद कर लो, स्टॉप कोडॉन तो याद होना ही चाहिए, मीथियोनिन स्टार्ट कोडॉन है ये भी याद होना चाहिए, ऐसे कुछ बीच बीच के एक दो याद कर लो। तो एक तो ये फीचर हुआ कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, दिस इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस नेचर। अमाइनो एसिड का अनएम्बिगुअस यानी नॉन कंफ्यूजिंग नेचर या स्पेसिफाइड नेचर, मतलब वन कोडॉन अगर तुम सिलेक्ट करते हो यहाँ पर कहीं से भी, तो उसके लिए 61 में से जो वन कोडॉन हम सिलेक्ट करते हैं तो एक तो हमको मिल ही जाएगा अमाइनो एसिड। अब उसका अपोजिट फीचर एक है, अपोजिट तो नहीं है, बस अपोजिट जैसा अपीयर होता है बट नॉट अपोजिट, इट इज कॉल्ड डीजेनरेट फीचर और डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी क्या है? डीजेनरेसी ये है कि यहाँ वन अमाइनो एसिड may be coded by more than one codon। और स्पेसिफिक नेचर क्या था, अनएम्बिगुअस फीचर क्या था, वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड, और डीजेनरेसी क्या है, वन अमाइनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन अमाइनो एसिड, मोर देन वन कोडॉन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम अमाइनो एसिड देखें तो अब तक के जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हैं, उनमें से बहुत सारे जो है वो प्रोटीन में नहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स अगर हम देखें तो टोटल जो है वो 20 है। तो अब अमाइनो एसिड टोटल 20 है और उन 20 को कोड करने के लिए जो कोडॉन है वो है 61। तो जाहिर सी बात है कि जब 20 अमाइनो एसिड है और वो कोड हो रहे हैं 61 से, तो एक अमाइनो एसिड जो है या कोई ना कोई या बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडॉन से भी कोड होते होंगे। तो वहां यहाँ पर इसी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फिनाइल एलानाइन है, 2 ट्रिपलेट से कोड हो रहा है, ल्यूसीन है, ये 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो टोटल 6 से कोड हो रहा है। तो ऐसे अमाइनो एसिड एक ही है लेकिन कोड करने के लिए 6 कोडॉन है। फिनाइल एलानाइन एक ही अमाइनो एसिड है, कोड करने के लिए 2 है। टायरोसिन एक ही है, कोड करने के लिए 2 है। यहाँ पर एलानाइन एक है, कोड करने के लिए 4 है। वेलिन एक है, कोड करने के लिए 4 है। आइसोल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है, कोड करने के लिए 3 है। तो एक अमाइनो एसिड मतलब कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कोडॉन, कोई 2, कोई 3, कोई 4 से भी कोड हो रहे, कोई 6 से भी कोड हो रहे। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कम है, 20 है, और उनके लिए जो कोड करने वाले जो ट्रिपलेट्स हैं वो 61 तक पहुंचते हैं। तो इसी नेचर को कहा जाता है डीजेनरेट नेचर या डीजेनरेसी। तो ये तीसरा फीचर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो फीचर है, कोडॉन जो होते हैं मैसेंजर आरएनए पे वो कंटीन्यूअस फैशन में होते हैं, मतलब लाइन से होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा इस टेबल में दिखाया हुआ है इस सीक्वेंस में होते हैं, ये तो इसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो वो कंटीन्यूअस होते हैं, मतलब ये कि जब उसको कोडिंग की जाती है तो एक ट्रिपलेट और दूसरे ट्रिपलेट के बीच में जो है वो कोई गैप नहीं होता है। तो कोई गैप नहीं होता, एक्चुअली कोई समझ लो कि प्रोनाउंसिएशन मार्क नहीं होता, क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया है एज मैसेंजर आरएनए लैंग्वेज। तो जैसे हम लोग जब लैंग्वेज कोई स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन मार्क होते हैं, जैसे
फुल स्टॉप है, सेमीकोलन, कोलन है, कॉमा है, तो इस तरह का कोई ऐसा पंक्चुएशन मार्क वाला कोडॉन नहीं है यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस होते हैं। और पांचवा फीचर है यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब कि अगर आप प्लांट्स के अंदर देखें, बैक्टीरिया के अंदर देखें, एनिमल्स में देखें, ह्यूमन बीइंग में भी देखें, तो जो कोडॉन और उनका जो अमाइनो एसिड का जो कॉम्प्लीमेंटेशन है ये सभी के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब जैसे ट्रिपल यू अगर बैक्टीरिया में आया तो फिनाइल एलानाइन को कोड करेगा, ट्रिपल यू अगर प्लांट में आया तो भी फिनाइल एलानाइन को ही कोड करेगा। इसी तरह से CGC अगर ह्यूमन में आ जाए तो अर्जिनाइन को कोड करेगा, ह्यूमन के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म में, लेट्स टेक द ईस्ट में आ जाए तो भी अर्जिनाइन को कोड करेगा वो। तो ये जो अमाइनो एसिड और उनके जो ट्रिपलेट कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम यूनिवर्सलिटी या यूनिवर्सल नेचर कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये जो AUG है, दिस इज द स्टार्ट कोडॉन, तो AUG जो है स्टार्ट कोडॉन होता है और इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं इसको। ये कोड करता है मीथियोनिन को फॉर यूकैरियोट एंड एफ मीथियोनिन फॉर प्रोकैरियोट। ये भी हमने मैसेंजर आरएनए वाले जो टॉपिक में हमने स्टडी किया था इसको। सो ये हो गए फीचर्स, इसके 6 फीचर हमने यहाँ पर स्टडी कर लिए हैं विद अलोंग विद टेबल। और इसके ऊपर भी जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखें तो उसको इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि मेट PHE इस तरह से लिखा है और फिर बोला गया है कि उसके लिए कोडॉन लिखो, और बाद में नीचे क्वेश्चन कुछ पूछा है कि डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द अपोजिट वन। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया 112 से और 113 तक का उसको पूरा कंप्लीट किया है। तो वो फीचर आपको बताना है कि आपको क्या डिफिकल्टी आई और डिफिकल्टी क्यों आ रही है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। तो यहां तक के हमारा जो है ये हमने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। उसके बाद में एक टॉपिक दिया हुआ है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, वो हम लोग देखते हैं बोर्ड पर हमारे। ओके, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड अभी हम लोगों ने देखा प्रोजेक्टर पर, जेनेटिक कोड के फीचर्स भी देख लिए। अभी म्यूटेशंस देखना है। तो म्यूटेशन हमने थोड़ा स्टडी किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। म्यूटेशंस जो होते हैं दीज आर द सडन चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उसके अंदर कोई होने वाला सडन चेंज, उसको म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन की भी अलग अलग टाइप है, हमने वहां पर देखा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, उसको क्लासिफाई किया था म्यूटेशन को, आप वो लेक्चर में देख सकते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था जिसको क्रोमोसोमल एबेरेशन भी बोलते हैं। इसी तरह से जीनोमिक म्यूटेशन होते थे जिनको न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहा जाता है। और जीन म्यूटेशन हमने देखा था जिसको हमने स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर हमको जो है वो मेनली स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। सो म्यूटेशन का जेनेटिक कोड के साथ में रिलेशन यहाँ हमको देखना है कि अगर म्यूटेट होता है कोई एक नाइट्रोजन बेस, 1, 2 या 3 नाइट्रोजन बेस डिलीट होते हैं या सब्स्टिट्यूट होते हैं, चेंज होते हैं या ऐड होते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है और इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं। सो म्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड यहाँ पे। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, मींस वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय वन ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, जैसे सपोज कर लो कि ये अपना मैसेंजर आरएनए है, तो अब ये मैसेंजर आरएनए पे यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ट्रिपलेट है, सपोज दिस इज स्टार्ट कोडॉन AUG। दूसरा हम ले लेते हैं UA, तीसरा हम ले लेते हैं CA, और यहाँ पर कहीं पर दिस इज 5 प्राइम एंड, क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम एंड की तरफ स्टार्ट होता है। दिस इज 3 प्राइम एंड, यहाँ पर कहीं पर है UAG, दिस इज द स्टॉप कोडॉन और ये है स्टार्ट कोडॉन। तो यहाँ पर ये 1 2 3
3 कोडॉन है। अब ये 3 कोडॉन जो है कोई ना कोई अमाइनो एसिड को कोड करते होंगे, तो जिन अमाइनो एसिड को ये कोड करते होंगे, जब इसका ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस की नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, इस टॉपिक के बाद में हमको स्टडी करना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो उसमें इनको रीड किया जाएगा और इनको ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है, सपोज कर लो कि यहां से लेकर के यहां तक का ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो इसको हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है टू अंडरस्टैंड द म्यूटेशन, कि म्यूटेशन क्या होता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है राम हैज रेड कैप, एक सेंटेंस ले लिया है, राम हैज रेड कैप। अब ये क्या है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, मतलब ये पढ़ने के बाद में हमको इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। और इस सेंटेंस में हमको जो है 3-3 लेटर का एक एक वर्ड है, तो ऐसा हम यहां पर एनालॉजी ले लेते हैं कि ये एक कोडॉन हुआ, ये दूसरा कोडॉन हो गया, ये तीसरा कोडॉन हो गया, जैसे यहां पर थे ये 4 कोडॉन है। तो अब ये 4 कोडॉन एक मीनिंगफुल सेंटेंस देते हैं। अब सपोज कर लो कि इसके अंदर हम जो है वो एक लेटर इंसर्ट कर देते हैं, सपोज कर लो हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं लेटर बी, और लेटर बी इंसर्ट कर देते हैं इस हैज के बाद में, तो ये हो जाता है राम हैज, हमने यहां पर बी इंसर्ट कर दिया है, तो बी आर ई एक साथ में आ जाएंगे। सपोज यहां पर हमने बी इंसर्ट कर दिया है, और ये जो डी है ये शिफ्ट हो जाएगा, और ये डी जो है ये शिफ्ट होकर के इन दोनों के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी सी ए, और पी और अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक कोड है, ये एक कोड है, ये कोड है, ये यहां पर इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है, यहां पर जो है ये भी मीनिंगलेस हो गया है, या कम से कम चेंज हो गया है, जो वर्ड है वो चेंज हो गया है। ट्रिपलेट तो है लेकिन अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा उस ट्रिपलेट के एक नाइट्रोजन बेस के चेंज होने की वजह से। अगर हम लोग जो है एक और वर्ड, एक और लेटर यहां पर ऐड कर देते हैं, सपोज कर लो हम लोग बी के बाद में जो है वो आई ऐड कर देते हैं, तो दिस इज राम हैज बी आई और आर। अब ये शिफ्ट हो जाएगा आगे, बी आई आर जो है वो साथ में आ गए, और ये ई डी सी ये शिफ्ट हो जाएगा, ई डी सी, और ये ए और पी यहां आ गया, तो ये एक ट्रिपलेट हुआ, ये एक ट्रिपलेट हुआ, ये ट्रिपलेट हुआ, ये ट्रिपलेट नहीं हो रहा लास्ट में। फिर हम एक और, अब देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एक एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड करते जा रहे हैं, एक एक ऐड करते जा रहे हैं, तो एक और हम ऐड कर देते हैं यहां पर, राम हैज बिग, जी ऐड कर दिया इस बार हमने, और इसको शिफ्ट कर दिया इसके साथ में, 3-3 का हम जो है वो साथ में ले रहे हैं, 3-3 को, 3-3 नाइट्रोजन बेस बोलो, या यहां पर देखिए इसमें लेटर्स बोलो, रेड, और सी ए पी ये साथ में आ गया, सी ए पी। तो अब यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, और इवन ये पूरा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल हो गया, राम हैज बिग रेड कैप। तो यहां पर जो है चेंज तो हुआ, ये पूरा का पूरा एक अमाइनो एसिड यहां पर ऐड हो गया है, अगर ये कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन के अल्फाबेट्स हों तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग जो है इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं एक या दो नाइट्रोजन बेस को, सो इंसर्शन और डिलीशन एक एक करके हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 नाइट्रोजन बेसेस, ये क्या कर देते हैं, ये पूरे रीडिंग फ्रेम को, रीडिंग फ्रेम मतलब कि पूरे सेंटेंस के रीड करने के पैटर्न को चेंज कर देते हैं। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 nitrogen base would change the entire reading frame of the genetic code।
तो रीडिंग फ्रेम जो है चेंज हो जाता है। तो ऐसा जो म्यूटेशन होता है जहां पर पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है, पैटर्न ही चेंज हो जाता है, इसको कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और एक नाइट्रोजन बेस जहां पर कभी अगर ऐड हो रहा है तो उसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन की जो एग्जांपल है ये हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी स्टडी की थी। इट इज सिकल सेल एनीमिया। अगर 3 का एडिशन होता है, 3 बेसिस कहीं पर ऐड होते हैं एक्सेप्ट स्टॉप कोडॉन, 3 का अगर एडिशन होता है या 3 का डिलीशन होता है तो उसकी वजह से रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज नहीं हो जाता होता है, लेकिन जो बनने वाला पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर कोई अमीनो एसिड या तो एक्स्ट्रा आ जाएगा और या तो कोई अमीनो एसिड जो है उसके अंदर से पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप का जो है वो म्यूटेशन है, इसको कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहां तक के जो है हमारा ये म्यूटेशन का जो टॉपिक था, कुछ हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में स्टडी किया और उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ये उसका एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसलेशन का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं।